Namaskar, all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 5 solids, liquids, and gases. Right? So, before we continue, let's have quick revision of previous video. So in previous video we have learned about what is solids, what is liquids, differences between solids and liquids, and about gases, right? So what is solids? Solids, things such as pen, pencil, eraser have fixed shape and size, and they do not flow and cannot be poured into containers. उसे हम क्या बोलेंगे? Such things are called solids, right? और क्या होता है? When solids are ground to a powder, हम solids को powder बनाएं, so they can flow through holes of containers, right? When sprinkled, example like talcum powder, salt and paper, right? And sand also moves inside an hourglass. hourglass होता है, उसमें जो sand होती है वो move होती है, वो flow नहीं होती, right? So this is solids. Now liquids, things such as water, oil and milk do not have fixed shape. They flow easily and take shape of the container they are poured in, right? Such things are called liquids. उनका fixed shape नहीं होता. They can flow easily and they take shape of container they are poured in. So such things are called liquids, right? And there are differences between solids and liquids. So first difference is solids have fixed and definite shape, but liquids do not have any definite shape. They take the shape of the container, right? Second difference is solids do not flow, but liquids flow easily, right? Now what is gases? So a things that has no shape, no size of its own is called a gas. गैस की कोई साइज नहीं होती, कोई शेप नहीं होता. Water vapor is a gas. Most gases cannot be seen. Water vapor यानी जो पानी की भाप है वो गैस ही है. Mostly जो gases हैं we cannot see them. Gases are all around us. Gases हमारे आजू बाजू बहुत है, because air is a mixture of many gases. Air है वो बहुत सारे gases का mixture है, right? Air moves from one place to another place, right? We call them wind, right? हम उसे पवन बोलते हैं. We breathe in air that contains a gas called oxygen. हम एयर लेते हैं, है ना? ब्रीथ में सांस लेते हैं तो हम एयर लेते हैं, तो उसमें हम कौन सा गैस लेते हैं? We take oxygen, right? All living things need oxygen to live. We all living things need oxygen, okay? Like liquids, gases can also flow. जैसे लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करता है. एयर फ्लो करती है, यस, वैसे लिक्विड भी, गैसेस भी फ्लो करते हैं, ओके? सी, वी ब्रीथ इन एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ओके? सो दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सी, अ molecules अंडर अ माइक्रोस्कोप. हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो सॉलिड कैसा दिखेगा, लिक्विड कैसा दिखेगा और गैस कैसा दिखेगा. तो सॉलिड के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखेंगे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे दिखेंगे और गैसेस के ऐसे दिखेंगे, राइट?
अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को किसी कंटेनर में डालें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। सॉलिड जो कैसा दिखेगा है, होल्ड शेप। सॉलिड है वो अपना शेप होल्ड करके ही रखेगा। इरेज़र है तो वो कंटेनर की जितना इरेज़र नहीं बन जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, राइट। तो सॉलिड्स होल्ड शेप्स एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम यानी जो उनका वेट है, वॉल्यूम है, वो भी सेम ही रहेगा। ओके, फिक्स्ड ही रहेगा। इरेज़र फिर कंटेनर में डालने से 5 किलो का नहीं बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इज सॉलिड। लिक्विड्स में क्या होता है, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर। देखो ये लिक्विड डाला तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, राइट। और उनकी सरफेस जो होती है वो फ्री होती है एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम सेम एज सॉलिड। वो भी अगर हमने 1 लीटर पानी डाला तो 2 लीटर नहीं निकलने वाला, राइट। सो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उतना ही रहेगा, उतने ही वेट का रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज गैस। सी, गैस टेक शेप ऑफ कंटेनर। शेप जैसा कंटेनर का होता है, जैसे हमने बॉटल में गैस भरा तो वो बॉटल जितना हो जाएगा, राइट। और अगर हमने किसी जार में भरा तो वो जार जैसा शेप ले लेगा। सो शेप ऑफ कंटेनर, गैसेस आर टेक शेप ऑफ कंटेनर्स एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स। देखो गैसेस के वॉल्यूम नहीं होते, उनका कोई वज़न नहीं होता। जैसे हमने बॉटल में भरा तो वो बॉटल जितना ही हैवी रहेगा। हमने कांच की बॉटल में भरा तो वो कांच की बॉटल जितना हैवी रहेगा, राइट। सो उनकी शेप और वॉल्यूम वो कंटेनर का हो जाता है। ओके, नाउ विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 51. But before we continue, let's learn some more hard words. See, you have to write down from 12 onwards. Okay, आपको 12 के बाद ही लिखना है। आप कई लोग क्या करते हो, दूसरे पेज से स्टार्ट करते हो 30। नो, ऐसा नहीं करना है। You have to start from 12. Okay, 12 से आपको क्या लिखना है, 30. So 13th word is forming. FORMING. फॉर्मिंग का मतलब होता है रचना। ओके, वो हम अभी सीखने ही वाले हैं, व्हाट इज़ फॉर्मिंग। ओके, 14th बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी उबालना, उबलना। स्टीम यानी भाप, STEAM, स्टीम यानी भाप। 16th वर्ड इज इवापरेशन। क्या है, इवापरेशन। ओके, तो EVAPORATION, इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनकर उड़ जाना, राइट। उसे हम बाष्पीभवन भी बोलते हैं। डन। 17th वन इज लीड। लीड यानी ढक्कन, LID, लीड यानी ढक्कन। 18th वन ड्रॉपलेट्स, DROPLETS, ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे। 19th वन कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? लिक्विड से सॉलिड बनना, उसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, दैट वी विल लर्न इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, लास्ट वर्ड इज मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग यानी पिघलना। ओके, so these are the hard words you have to write down in your fair notebook with very good handwriting. Okay, now open page number 51. Let's reminder हमने कर लिया है। Now see, change of form. हम फॉर्म्स में चेंज देखते हैं, राइट। तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। फॉर्म्स यानी रचना। देखो पानी की रचना होती है, राइट, बर्फ़ की रचना होती है, गैसेस की। तो वो सारी उसमें
चेंजेस आते हैं, वो कैसे आते हैं, दैट वी विल सी वाटर फ्रीजेज टू फ्रॉम आइस। हम पानी को फ्रीज करते हैं ना, फ्रीज़र में डालते हैं हम पानी, तो वो क्या बन जाता है, आइस। सबको पता है, डन, यस। नाउ आइस मेल्ट्स टू फ्रॉम वाटर। अगर हमने फ्रीज से बर्फ़ निकाल के रख दिया रूम टेम्परेचर में, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और क्या बन जाएगा, इट्स वाटर, राइट, डन। When water is heated longer, small bubbles start forming. अगर हम पानी को उबालें, है ना, आप कभी घर में मम्मी कुछ किचन में कर रही है ना, रसोई वगैरह, तो आप देखना वो लीड ढकती है खाने पे, तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलते हैं आपको, है ना। तो वो हम अगर हम कभी देखें दाल उबल रही है तो ऊपर से भाप दिखेगी आपको, है ना। तो वो क्या होता है, when water heated longer small bubbles started forming, वो लीड पे स्मॉल बबल्स हो जाते हैं भाप की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, उबालना, है ना। दाल उबालते हैं, पानी उबालते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। स्टीम राइज अप फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। मैंने अभी आपको बोला वो पानी जो उबल रहा है उससे क्या निकलेगी, स्टीम, है ना, भाप निकलेगी। और स्टीम इज़ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। वो स्टीम ही है जो ड्रॉपलेट्स बनाती है, वो पानी ही है पर किसी फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, ओके। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब पानी है वो स्टीम में बदल जाए बाय हीटिंग, हीट करने से, गर्म होने से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, ओके। So this is evaporation. Now we'll see condensation. If you hold a lid on a plate above boiling water, the steam touches the lid, right? हम ऐसे ढक्कन रखे, जैसे यहाँ पे रखा है ऐसे ऊपर, तो ये स्टीम जो यहाँ से निकल के वो लीड को टकराएगी, राइट। और वहाँ पे क्या होगा, सी, the steam then cools down and changes into tiny water droplets, और वो स्टीम है वो छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, पानी की बूंदे, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। इसे हम कॉन्डेंसेशन बोलेंगे, ओके। स्टीम कॉन्डेंसेस टू फॉर्म वाटर। स्टीम है वो क्या करती है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है, उसे हम कॉन्डेंसेशन बोलेंगे, ओके। Steam condenses to form water, right? The three forms of water, solid, liquid and gas, can change from one form to another by heating or cooling. See, ये condensation और evaporation दोनों होता है by heating और cooling, और इसमें से forms change होते हैं, solid, liquid और gases. See, we have change of forms of water, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर का फॉर्म है, जो रचना है वो कैसे चेंज होती जाती है। सी, देयर इज आइस। पहले हम ऊपर का देखेंगे फिर नीचे का समझेंगे, ओके। फर्स्ट वी हैव आइस, राइट। अगर हम आइस ले, उसे मेल्ट करें या फिर हीट करें, गर्म करें, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर, लिक्विड फॉर्म। सॉलिड इज़ आइस इज़ अ सॉलिड। उसे हम अगर मेल्ट करें या हीट करें, गर्म करें, तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, राइट। अब वाटर को हम बॉईल करें, बॉईल यानी उबालें, बहुत गर्म करें ज़्यादा ही, तो वो इवापोरेशन होगा, राइट। देखो वहाँ से क्या होगा,
स्टीम निकलेगी, गैस निकलेगा। निकल रहा है, ये स्टीम आपको दिख रही है। यस, तो जब सॉलिड है आइस, उसको हीट करने से वो क्या बनता है, लिक्विड वाटर। फिर उसे बॉईल करने से वो क्या बनता है, गैस, राइट। उसे हम बोलेंगे स्टीम। नाउ विल सी, ये स्टीम है, उसको हम कूल करें। जैसे ये है, ये हमने लीड ऊपर रख दी, यहाँ पे लीड ऊपर रख दी और उसे हमने कूल करा, तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। वो स्टीम है, वो वाटर बन जाएगी। अभी मैंने बोला आपको कि स्टीम है, वो क्या बन जाएगी, स्टीम कन्वर्ट्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, वो वाटर बन जाएगा। वाटर को हम फ्रीज करेंगे, वाटर लिक्विड है, उसे हम फ्रीज करेंगे तो वापस से सॉलिड बन जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन forms of water. Okay, so this is evaporation and condensation. Now turn the page number 52. See, the process by which a solid changes into a liquid on heating is called melting. हम मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे या फिर हीट करके सॉलिड को गर्म करें या रूम टेम्परेचर पे रखें तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, राइट, यानी पिघलना। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जहाँ से लिक्विड चेंज होता है गैस में, यानी पानी को हम उबालते हैं, लिक्विड इज़ पानी, राइट, तो उबालते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम इज़ गैस। सो वो हीट को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग करने को इवापोरेशन। ओके, the process by which a gas changes into liquid on cooling is called condensation. वो स्टीम है, वो कूल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड condensation, right? So these are the things. Now what is freezing? ये सबको पता है, the process by which a liquid changes into solid on cooling is called freezing. freezing किसे बोलते हैं, जब लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे। ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर, राइट। इसमें हमारे पास दो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दो जो प्रोसेस है, चेंजेस इन फॉर्म है, वो न्यू थिंग्स है। मैं उसके लिए आपको कंसेप्ट वीडियो भेजने वाली हूँ जो मैंने बनाया है, उससे आप बहुत इजीली वो सीख पाओगे। अभी नाउ लेट्स डिस्कस। इफ़ यू लीव अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द विंडो सिल, द वाटर लेवल गोज डाउन द नेक्स्ट डे, वाई? आप अगर सुबह कोई ग्लास है पानी का वो विंडो सिल पे रखोगे तो वो पानी का लेवल शाम तक कम हो जाएगा ना, येस और नो? हो जाएगा, यस यस। बट वाई? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। पानी है वो भाप बन जाती है ना, हम सब ने आज सीखा, पानी है वो भाप बन जाती है। तो दिस एक्टिविटी वी विल डू। ओके, नाउ सी, वी हैव एक्टिविटी हियर, एम, यानी हमें क्या करना है, टू ऑब्जर्व कंडेंसेशन। हमें कंडेंसेशन ऑब्जर्व करना है, देखना है। सो दिस यू हैव टू, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डन विथ योर पेरेंट्स। ओके, और वीडियो बना के फिर मुझे सेंड करनी है। मैं वीडियो आपकी यूट्यूब पे डालती हूँ, आपने अगर देखा हो तो, ठीक है। तो आप सबको ये कंडेंसेशन कैसे होता है वो देखना है। सी, मटेरियल यू नीडेड, आपको मटेरियल चाहिए, अ स्टील ऑफ ग्लास और टम्बलर एंड आइस कॉल्ड वाटर, और
बर्फ़ जैसा ठंडा पानी चाहिए और स्टील का एक ग्लास चाहिए, या कांच का ग्लास ले लो तो भी चलेगा। मेथड आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप आइस कोल्ड वाटर इन अ स्टील और ग्लास टम्बलर। आपको ऐसे ग्लास है उसमें आइस जितना ठंडा पानी डालना है। ओके, नहीं है तो आप पानी डालो थोड़ा और उसमें क्या करोगे, 2-3 आइस क्यूब्स डाल दो। राइट, सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, लीव इट फॉर 5 मिनट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको वो 5 मिनट तक वहाँ रहने देना है। ओके, वो ग्लास को ऐसे ही रहने देना है। देन यू हैव टू ऑब्जर्व, व्हाट यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, there are water droplets on the outer surface of the tumbler. You can see, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। आप कभी देखना, पानी की बोतल फ्रिज से निकाल के आपने रूम टेम्परेचर पे रख दी ना, तो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं। राइट, तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज कंक्लूजन, अभी हमें क्या कंक्लूजन मिला, देयर इज़ अ वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर एयर में होती है ना, तो भाप होती है। व्हेन द वेपर कम्स in contact with the cold surface of tumbler, it cools down and condenses to from water droplets. जो भाप होती है वो हवा में होती है, और वो जब ये पानी का जो ग्लास पड़ा है उसके कांटेक्ट में आती है तो वो भाप क्या बन जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, वाटर बन जाती है। So this is called condensation, right? Done? So this is our activity you guys have to do. Okay? Now what is keywords? See, यहाँ पे keywords दिए हैं, ये बहुत ही important है, इससे आपको easily सब समझ में आ जाएगा। So let's learn. What is solid? A thing that has definite shape and size is called a solid. सॉलिड किसे बोलते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज। राइट, व्हाट इज लिक्विड, अ थिंग दैट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जो कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। राइट, एंड व्हाट इज गैस, अ थिंग दैट हैज नो शेप और साइज ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड अ गैस। उसकी खुद की कोई साइज या शेप नहीं होता है ना, उसे हम बोलेंगे गैस। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। हम गरम करके सॉलिड को गरम करके जो चेंज में फॉर्म लाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, पिघलना। What is evaporation? The process by which a liquid changes into gas on heating is called evaporation. हम लिक्विड को गरम करके, हीट करके, है ना, उबाल के गैसेस में चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, evaporation. And what is condensation? The process by which gas changes into liquid. यहाँ से हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। यहाँ से हीट से होता है, यहाँ कूलिंग से होता है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। राइट, नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग, तो द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। हम ठंडा करके फ्रीज करके हम लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ओके, सो दीज आर द कीवर्ड्स यू हैव टू लर्न। ओके, यू मस्ट हैव टू लर्न, नहीं तो ये पूरा चैप्टर आपको नहीं आएगा। सी, दिस चैप्टर इज़ सो इंटरेस्टिंग, आपको इसकी सारी एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आने वाला है। बट इफ़ यू गाइज आर डोंट अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, you will not able to learn this chapter. Okay,
you will not able to enjoy this chapter. So you guys have to learn this. Okay, now see the summary. Water exists in 3 forms, right? We have learned in this chapter these points, right? ये सारे points हैं हम ये chapter में पढ़ गए. तो water exists in 3 forms. We all know water है वो 3 forms में है, solids, liquid and gas, right? Solids have definite shape of their own. सॉलिड का क्या है, अपना खुद का शेप है ना. लिक्विड डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन. लिक्विड का कोई शेप नहीं. पानी का शेप है, आपने देखा मिल्क का शेप, नो, दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं. ओके, दे फ्लो ईजीली. वो आराम से बह जाते हैं. दूध गिरा तो वो बहता रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि चलो वो यहीं गिरेगा, है ना. इसकी कोई लिमिट नहीं होती. अगर पानी हम ऊपर से ऐसे बॉटल ऊंची करके पानी गिरा है तो वो बहुत जगह स्प्रेड होएगा, वो फिक्स नहीं कि यहाँ स्प्रेड होगा. अगर हम बेंच के ऊपर चढ़ के इरेज़र को गिरा है तो वो एक जगह से हम ले सकते हैं, बिखर नहीं जाता, फ्लो नहीं होता, राइट. सो this is liquid. Now what is gases? Gases do not have a shape or size of their own. उनका ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई साइज होता है. They can flow easily, और वो फ्लो भी होता है, राइट. अभी गैस का आप फ्लो देखो तो आपको आप स्प्रे करते हैं, राइट. डीओ स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे तो आप लगाते हैं तो वो एयर में कैसे घुल जाता है, बिकॉज इट्स फ्लो, है ना. सो गैसेस फ्लो ईजीली. नाउ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन है और एक वाटर वेपर है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस. वो गैसेस के एग्जाम्पल्स है ना. दीज आर दी गैसेस. वाटर वेपर यानी पानी की जो भाप है, दिखती है नहीं दिखती, तो वो गैसेस है. ऑक्सीजन भी गैस है. नाउ द 3 forms of water can change from one to another by heating or cooling. हम ये तीनों जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म्स में चेंजेस कर सकते हैं. हम सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैस करते हैं, गैस से हम लिक्विड कर सकते हैं और लिक्विड से हम सॉलिड भी कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग. उसे गर्म करके या फिर ठंडा करके. ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर 5, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, so in homework you have to write down first hard words, second homework is this activity, and third homework keywords you have to write down in your fair notebook and learn. Once again I am telling you guys, if you guys have to enjoy this chapter you must have to learn these keywords. तभी आपको ये समझ में आएगा what is evaporation, what is condensation and what is solids, liquids and gases. ओके, इसके बाद जो अब आपका कंसेप्ट वीडियो आएगा you will guys so much enjoying that video. Okay, so bye bye for today. Stay healthy and drink more water.